آئیے دوستو، ربانی کامٹی کی شان میں ایک اور شان جناب رشید الظفر صاحب کے ساتھ ایک خاص ملاقات۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میری ابتدائی تعلیم میونسپل اردو اسکول کے میں ہوئی، جہاں میں نے پہلی جماعت سے چوتھی جماعت تک تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر ربانی اسکول میں 5ویں کلاس میں داخلہ ہوا، جہاں میں نے 5ویں سے 11ویں کلاس تک پڑھائی کی، اور وہاں سے سائنس کے مضامین میں سے 11ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ آپ کا 12ویں کب ہوا؟ اس وقت پرنسپال صاحب کون تھے، ہیڈ ماسٹر صاحب کون تھے، اور آپ کو پڑھانے والے ٹیچر حضرات میں کن کو یاد کرنا چاہیں گے، اور آپ کے بیچ کے یعنی ساتھ میں پڑھے ہوئے کچھ ساتھیوں کے نام جن کا آپ مناسب سمجھے؟ ظاہر سی بات ہے سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، فی الحال نقد میں جو یاد آ جائے انشاءاللہ، اور جن کو یاد نہیں کیا آپ میں کوئی شکایت کی بات؟ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ میری تعلیم ربانی اسکول میں ہوئی، تو 5ویں جماعت میں جب ہم آئے تو وہاں پر اردو تو پڑھتے تھے، پرائمری تو اردو میں ہی پڑھی تھی، لیکن 5ویں جماعت سے انگریزی اور ہندی بھی پڑھائی جانے لگی، جس میں میری دلچسپی کافی رہی، اور جس کی وجہ سے اس میں جو انگریزی پڑھاتے تھے وہ نور محمد ماسٹر تھے، جو بہت ہی بڑے محنت سے پڑھاتے تھے بچوں کو، اور بڑی توجہ دیتے تھے، اور میرے طرف زیادہ توجہ ان کی رہتی تھی کہ مجھے آتا ہے نہیں آتا ہے، میں سیکھ رہا ہوں میں نہیں سیکھ رہا ہوں۔ اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ میرے والد کے شاگرد رہ چکے تھے، اسی ربانی اسکول میں پڑھ چکے تھے، اس لیے وہ زیادہ توجہ دیتے تھے کہ یہ تو حمید جمال صاحب کے صاحبزادے ہیں، ذرا ان کے جو ہے خیال جو ہے وہ زیادہ رکھا جائے، اور جو برابر سیکھ رہے ہیں نہیں سیکھ رہے یہ جاننے کی کوشش ان کی ہمیشہ رہتی تھی، کیونکہ میرے والد صاحب بھی ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ جو میرا بیٹا اب آیا ہے بڑا دبلا پتلا سا ہے، بڑا کمزور سا ہے، تو پڑھ تو رہا ہے ٹھیک، تو وہ لوگ بڑا اطمینان بخش جواب دیتے تھے کہ نہیں وہ تو بڑا ذہین ہے، ہر ایک بات کا ہر سوال کا جواب دیتا ہے، تو ان کو کچھ اطمینان ہوتا تھا۔ اس طرح وہ یہ رہا کہ میں جتنے بھی اساتذہ تھے، اس کے علاوہ ہندی پڑھاتے تھے عباس ماسٹر ان کا نام بڑے پرانے کہ وہ بلکہ بعد میں جب ہم لوگ شاید 7ویں 8ویں جماعت پہ گئے تو وہ ریٹائر بھی ہو گئے تھے، لیکن وہ ہندی بھی بہت اچھی پڑھاتے، تو اس کی وجہ سے بھی اور زیادہ دلچسپی رہتی تھی۔ پھر جو ریٹائر نور الدین ماسٹر تھے، وہ ان کا بہت ہی خاص میری طرف توجہ تھی، تو بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا، اردو زبان کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ سیکھی، خاص طور سے وہ جو ٹینسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زبان آتی ہے، اور ویسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم حال کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس میں کیا ورب استعمال ہوگا، اور وہ ماضی کی بات کر رہے ہیں تو کس طرح سے ورب چینج ہوگا، اور اگر وہ ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ورب کے ساتھ اور کیا لفظ لگیں گے کہ وہ معلوم ہو کہ یہ مستقبل کی بات ہے۔ تو اس طرح سے بڑے بنیادی طریقے سے بڑے سمجھا کر پڑھاتے تھے، تو ہم لوگوں کو بڑی دلچسپی ہوتی تھی اور سیکھتے تھے۔ 12ویں کا تو اس وقت نہیں تھا، 11ویں ہوا کرتی تھی، وہ میٹرک کا امتحان ہوتا تھا، اور اس میں میرے ساتھ جو طلباء تھے اس میں سب سے زیادہ میری دوستی ہے ماسٹر محمد یعقوب، یہ وہ تھے جو ابھی بھی ہیں، وہی نہیں اب وہ تو ادھر نہیں ہے، یہ اس میں آ گئے ہیں، وہ تھے۔ ایک عظیم الدین
ये जो वारिसपुरे में नहीं नया बाजार में तो नबी का वो मेरे क्लास वाले थे। वो दो भाई थे इसमें वारिसपुरा के, हबीबुर रहमान और हफीज़, दोनों भाई। हाँ, वो और खैरुल बशर, ये सब हमारी क्लास में थे। लेकिन वो खैरुल बशर आर्ट्स में थे, हम लोग तो 10वीं साइंस में थे। तो इस तरह से उन लोगों का साथ। सर, जिस तरह से हम जानते हैं कि बच्चों की जो बेसिक तालीम होती है, प्राइमरी तालीम, वही उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। तो आपने जहाँ हामिद जमाल सर का नाम लिया लेकिन उनकी तफसीलात नहीं बताई, और इसी तरह नूर मोहम्मद सर का नाम लिया, तो इसी तरह से प्राइमरी स्कूल में आपके कौन से टीचर थे और उनका क्या तरीक़ाकार था पढ़ाने का जो आपको अभी तक याद है? ज़रा उनका भी जिक्र करते चले, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक ज़ुबान को सीखने का ताल्लुक़ है, वो हमारे वालिद साहब भी कहते थे, और जो हमारे दूसरे असातिज़ा थे, नूरुद्दीन मास्टर, वो भी ये कहते थे कि जब तक आपको उस ज़बान की बुनियादी ग्रामर समझ में नहीं आएगी, आप कोई ज़बान नहीं सीख सकते। तो इसलिए वो ज़रूरी है कि आप वो ये समझें कि उसकी जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, उसकी जो वो है, वो जिन अल्फाज से शुरू होती है और जो वर्ब सबसे पहले तो उसके अंदर जो होता है, हाँ, वो उसका सीखना ज़रूरी है। और फिर जब वो वर्ब आपको पता है तो फिर वो हाल और माजी और मुस्तक़बिल, हाँ, टेंसेस उसके कैसे चेंज होंगे, अगर आप ये बुनियादी चीज़ समझ जाएं तो ये नूरुद्दीन मास्टर बताते हैं, हमारे वालिद साहब बताते हैं। और इसलिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि 5वीं जमात में वो बताते थे कि हम और कोई भी नहीं था, तो जो वो उन्होंने मुझे रटा दिया था कि प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस ये कैसे होगा, ये सब जो है उसके जुमले बाकायदा, और वो याद करते। अच्छा, सिर्फ वही नहीं, फिर उन्होंने बताया कि जो दूसरी बात बुनियादी समझनी है वो है कि आप जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो किसी नाउन के साथ करते हैं। यानी आप ये बताते हो कि मैं जब कह दिया आपने तो कोई शख्स हो गया, है ना, यानी वो नाउन है, तो उसके साथ में वो कैसे शुरू होगा। जो सेकंड पर्सन है, यानी जिसको आप ही बोल रहे हो, उसके साथ अगर वो वर्ब आएगा तो उसका इस्तेमाल किस तरह से होगा अंग्रेजी में। तो ये सारी जो बुनियादी बातें हैं वो सब ये बताते थे, और ये टेंसेस के हिसाब से कि वो कहाँ विल लगेगा, कहाँ वुड लगेगा, इस तरह की बातें वो जो है वो सारी बुनियादी हमें स्कूल के ज़माने मतलब 5th 6th में ही ये सीखा। तो इसकी वजह से ये हुआ कि फिर अंग्रेज़ी को समझना, और ये होता था कि हमारे यहाँ अखबार आता था अंग्रेज़ी का, तो वो हम लोग जो है वो उसको पढ़ते थे, और वो जो उसके अंदर सेंटेंसेस रहते थे उसमें देखते थे कि ये वर्ब है और इसके माने। लेकिन जो उसमें मुश्किल आता था, हमारे वालिद साहब के उसमें एक बहुत वो सीधा सी थी डिक्शनरी, लेकिन वो थी अंग्रेज़ी और उर्दू, और वो थी मौलवी अब्दुल हक की बनाई, जो आजकल भी शायद पता नहीं मिलती है नहीं मिलती, वो थी। तो वो कहते थे कि जो लफ्ज़ नहीं समझ में आता तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दो कि अरे इसका पता नहीं क्या माने, वरना फिर कन्फ्यूजन रहेगा आपको। तो वो डिक्शनरी रखते थे, तो वो हमारे सामने टेबल पे ही रखी होती थी, उसके कहते थे कि आप इसके जो है माने जो है वो देख लिया करें, तो हमसे पूछ लो कि पहले क्या है इसके माने, अगर हमने बताते थे तो वो डिक्शनरी भी देख लो। तो डिक्शनरी भी देखना जो है हमें 5th 6th में सीखना दिया था कि वो कैसे लिखी जाएगी और कैसे वो लफ्ज़ वो ABC के हिसाब से कैसे चलेंगे, उसका जो पहला हर्फ आता है लेटर आता है उसके हिसाब से वो ढूंढा जाएगा उसमें, इस तरह से डिक्शनरी देख कर उसके जो लफ्ज़ के मानी थे। तो वो हम लोग जो ज़बान सीखते थे वो ये थी कि ऐसे नहीं कि बस वो सुन लिया और वो हो गया, अगर उसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ आया तो उसकी वजाहत और उसको समझ जो है वो जरूर करें, उसकी वजह से जी।
2 सालों से कोविड की वजह से जो एजुकेशन में थोड़ी सी चेंजिंग आई, ऑनलाइन वाला माहौल, जिसकी वजह से मजबूरन हमें अपने बच्चों को मोबाइल देना पड़ा ना चाहते हुए। इसका प्लस क्या है, माइनस क्या है, कुछ इस पर रोशनी है। देखिए, वो तो अब ऐसा है कि वो एक ज़रूरत बन गई। आप क्या कि उससे इनकार नहीं कर सकते कि वो नहीं हो सकता, इसलिए कि जो मुझे बीमारी है तो उससे तो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट की वजह से, इसीलिए तो वो किया गया कि आप घर पे रहो और वहाँ से जो है टीचर जो है आपको पढ़ाएगा, जो उसके मोबाइल से बन गया। तो वो कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि जो माहौल जब क्लास में बैठ के बनता है वो वैसा माहौल बन ही नहीं पाता, और उसमें जो रख रखाव सीखता है जो एक साथ में बैठ के, वो उसका फुकदान हो सकता है अगर हाँ ज़्यादा दिनों तक ये चलता रहेगा मामला, क्योंकि वो जो हाँ सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें फ़र्क आने लगता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो तो वही वाली तालीम जो है वो ज़्यादा अच्छी है कि वो मिल के करें। ये जो ऑनलाइन वाली है ये इतनी ज़्यादा टेम्परेरी ठीक, हाँ टेम्परेरी ठीक है कि अभी कोई मुश्किल का सामना है, इसलिए उसको अपनाना पड़ रहा है, वरना तो वही तरीका ही सबसे है। क्योंकि बोर्ड पर जब चौक लेकर टीचर पढ़ाता है उसमें और यहाँ पर तस्वीर में दिखने में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। उसके जो जहन बनता है पढ़ने लिखने का वो अलग तरीके का होगा अगर वो इस तरह से चलेगा, लेकिन जो चाक और बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर वो लिख कर पढ़ा कर जो टीचर पढ़ता है वो उसका ऐसा अलग। फेसबुक पर रब्बानी कामटी की शान और यूट्यूब पर कामटी की शान, ये हमारा चैनल आप देखा करते हैं। हमारी भूख क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, ये आपको पता है। लाइक शेयर और कमेंट ये भी बताइए कि जनाब से हम आगे जब दोबारा मिलेंगे, पहली मुलाकात तो है ये जनाब से, इंशाअल्लाह आखिर नहीं होगी, तो आपके किन सवालात को इनकी खिदमत में पेश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका एहसास करते वक्त हमको भी नहीं होता है। मिसाल के तौर पर हमें बताया गया कि आपके इंटरव्यूज का सिलसिला इसलिए अच्छा है क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल मूव से, पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं है, और आने वाले ज़माने में एक पॉलिटिकल इलेक्शन की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज की मार्केटिंग करने वाले चैनल्स हैं उनकी भरमार पड़ी हुई है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह हमको बचाए रखे। पहली बात मैं जनाब से ये सवाल करना चाह रहा था, मैं मेरे बाजू बैठे हुए जनाब अनवारुल हक पटेल साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, जिनका बहुत अहम रोल है ये इंटरव्यू दिलवाने में आपसे, और हम आपकी खिदमत में लेट हाजिर हुए उसको संभालने में भी। जो आजकल एक कामटी में सिलसिला शुरू है, जो अदबी शख्सियात हैं उनके जो ताज़ीम में प्रोग्राम रखे जाते हैं, बहुत सारे लोग माशाल्लाह उसकी तारीफ तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग बुराई भी करते हैं कि जो शख्स समाज से कटा हुआ है, जो शख्स समाज में नहीं है, आप उसकी तकरीबात, उसकी बातों को इतना सामने ला रहे हैं, जो समाज में मौजूद है और सामने आके मेहनत कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, आप उनके बारे में इंटरव्यूज नहीं लेते हैं। तो ऐसी नेगेटिव थिंकिंग्स को क्या बोलना चाहेंगे? और जो लोग जैसे अनवारुल हक पटेल साहब भी और इनकी टीम और कामटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्कार करते रहते हैं, इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जो बाहर से आने वाले वो भी और कामटी में मौजूद जो शख्सियात हैं उनका जो एजाज प्रोग्राम रखते हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो शख्सियात कामटी में रहकर जिन्होंने यहाँ तालीम हासिल की, पढ़े लिखे और वो फिर अगर कहीं और जाकर किसी दूसरे शहर में जाकर या मुल्क में जाकर वहाँ पर कोई खिदमत अंजाम दी, तो यहाँ के लोगों को तो बड़ा उसका फ़ख्र महसूस करना कि हमारे यहाँ का एक बच्चा जो यहाँ के उस ज़माने में तो आप लोग थे भी नहीं, और मैं बता रहा हूँ, मैं खुद देखा हूँ कि जो वो जो बुनकर ख़ानदान थे, वो उनके जो वालिदैन थे वो दिन भर, बल्कि वो उसको कहते थे आधी कब्र, क्योंकि वो पैर जो है उसमें होता था आधा और आधा बाहर होता था, कि आधी कब्र में जाकर दिन भर काम करते हैं और फिर कहीं जाकर रोजी रोटी कमाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो ज़माना ये था कि ऐसी गरीबी थी
कि लोगों के पास पैसा नहीं था, वो भी जो बेचारे अपनी मेहनत करके दिन भर और मेहनत करके उनको पढ़ाते थे और वो जाए। तो इसलिए यहाँ के लोगों को तो ऐसे बच्चों को तो जो जिनके वालिदैन ने ये किया उसकी उसका बहुत ही सामना होना चाहिए और उनको मानना चाहिए कि इस तरह से उन्होंने नाम किया, एक तरह से काउंटी का कि ये गए और वहाँ पर इतनी मेहनत की और फिर वहाँ कुछ अपना नाम किया। तो बहरहाल ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर इस तरह के लोग ये कह रहे हैं कि इसको डिस्करेज करते हैं कि वहाँ के लोग आए तो उनका एहसास क्यों हो और किस तरह होते हैं ऐसे नेगेटिव सोच वाले। तो वो हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं। तो जो लोग सही नीयत से काम कर रहे हैं उनको ऐसी बातों में उलझना नहीं चाहिए और बददिल नहीं होना चाहिए। अपना जो काम कर रहे हैं और नेक दिली से जो कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए। तो उससे जो कि समाज की जो खिदमत हो रही है ये समझना चाहिए। तो मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है कि कोई लोग बाहर से आए, उनका एहसास किया जाए और उनकी तहजीब की जाए और ख़ासतौर से उनकी जो पहले से यहाँ रह चुके हैं, यहाँ से तालीम हासिल करके गए, तो कोई गलत बात नहीं है। उनके लिए जो है किया जाए इस तरह।